Good evening to all. Myself Ovik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher, and this video is for the class 11 students. Okay, so in this video, just we are going to discuss the domain and range of the different types of functions. Okay, and which are very important for the exams and for the concepts also. Okay, just which are going to be used in the different places. That means in class 12. And in class 11 also, the domain and range part is very important for getting the clear concept regarding the more and more derivations in the physics and in mathematics also. Okay, so this part is very important for the entrance studies also. That means those who have this interest to face this JEE main and advanced exams, this type of exams, then they should have the clear concept regarding the domain and range of a particular function. Okay, so that means this part is very essential and very important also for all the students. So you should view the lectures properly, and you should listen whatever the discussion is going on in this video. Just after that, I think the domain and range related confusions and this problems will be sorted out. Okay, so in this video, just write the first question. And one more thing, if you like my videos, if you like my lectures as well, then please subscribe, like and share. Okay, so subscribe भी करना है. राइट साइड में देखो एक रेड कलर के एक बटन है सब्सक्राइब करना है. फिर उसके बाद बेल आइकन जो है उसको भी क्लिक करना है. फिर उसके बाद आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है. ठीक है, तो ये सब जो है एक चैनल ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होता है. ठीक है, तो जस्ट राइट द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. Just write the first question. Just write the first question. Okay. Find the domain and range of fx equals to. Find the domain and range of fx equals to. Find domain and range of fx equals to x minus 2 by 3 minus x. X minus 2 by 3 minus x. Okay, it is the question. Just you have to find the domain and the range of this particular function. Okay, domain मतलब क्या है, मैंने क्या बोला था लास्ट लेक्चर में. domain मतलब है इनपुट और रेंज मतलब है आउटपुट. दैट मीन्स आपको इनपुट निकाल के दिखाना है. दैट मीन्स इस काम में, इस fx में आपको इनपुट क्या क्या डाल सकते हैं. लिमिटेशंस है कि नहीं यहाँ पर. इनपुट मतलब x का वैल्यूज, x का वैल्यूज का कुछ लिमिटेशंस यहाँ पर है कि नहीं. ठीक है, और आउटपुट जो है, आउटपुट क्या क्या निकलेगा, या फिर आउटपुट का भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि यहाँ से यहाँ तक आउटपुट आएगा. ठीक है, वो सब आपको निकाल के दिखाना है यहाँ पर. ठीक है, सो हियर fx इक्वल्स टू x minus 2 by 3 minus x. It is a given function. Okay, so here मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि कोई भी एक फंक्शन अगर फ्रैक्शन टाइप का हो, फ्रैक्शन है, तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर की तरफ फर्स्ट आपको देखना है. डिनोमिनेटर कोई भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता है. डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाए तो ये फंक्शन पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता. तो डिनोमिनेटर में कुछ भी एक्सप्रेशन लिखा रहे, उस एक्सप्रेशन का वैल्यू कभी भी जीरो के साथ इक्वल नहीं हो सकता है. दैट मीन्स हियर 3 minus x never equals to 0. So that means minus 3 never equals to minus 3. That means x not equals to 3. That means x का वैल्यू यहाँ पर 3 के साथ इक्वल नहीं हो सकता है. तो अदर देन दैट you can put any other values of x in the denominator part as well except 3. तो 3 के अलावा यहाँ पर देखो, 3 के अलावा x के जगह कुछ भी तुम यहाँ पर पुट करो, देखो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं आएगा, बट 3 नहीं पुट कर सकते. दैट मीन्स कुछ भी यहाँ पर पुट करना है, कुछ भी मतलब रियल नंबर. सो दैट मीन्स डोमेन क्या होगा, कुछ भी. दैट मीन्स रियल नंबर, बट क्या चूज नहीं कर सकते, 3 चूज नहीं कर सकते. तो 3 को माइनस करना है आपको. अब माइनस जो करोगे सिर्फ 3 को नहीं, सिंगल टोन सेट 3 ऐसे लिखना है आपको. 3 को माइनस करना है. ठीक है, दैट मीन्स सिंगल टोन सेट 3. एक सेट के अंदर 3 को आपको यूज करना है. ठीक है, आप सिंगल ऐसे 3 नहीं लिख सकते. ठीक है, तो ये होता है डोमेन. अब रेंज निकालने के लिए
लेट, मैंने बोला था एफ एक्स जो है y एक ही बात है, x माइनस 2 बाई 3 माइनस एक्स। तो मैंने बोला था कि अगर आप रेंज निकाल रहे हैं तो रेंज में क्या होता है, यहां पर लेफ्ट साइड में सिर्फ x का एक्सप्रेशन रहेगा, राइट साइड में y का एक्सप्रेशन रहेगा। बट यहां पर तो देखो y लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में x है, ऐसा नहीं हो सकता। जब रेंज निकाल रहे हो दैट मींस लेफ्ट साइड में सिर्फ x का एक्सप्रेशन रहना चाहिए और राइट साइड में y का एक्सप्रेशन रहना चाहिए, ठीक है। तो दैट मींस इसके लिए हम लोग को कुछ यहाँ पर करना है। सपोज क्या करना है, देखो यहाँ पर y इक्वल्स टू क्या है, x माइनस 2 बाई 3 माइनस एक्स। मैंने प्रोसेस क्या बोला था कि जब आपको रेंज निकालना है तब आपको, और फ्रैक्शन टाइप का कोई भी फंक्शन हो तो न्यूमरेटर में देखना है। न्यूमरेटर में जो x का टर्म है, न्यूमरेटर में x का टर्म क्या है, ये है x, ओनली x। इस x को किसी तरह यहां पर कैंसिल करना है? x को किसी तरह यहां पर कैंसिल करना है एट एनी कॉस्ट। तो यहां पर इस x को कोफिशिएंट क्या है, +1, दैट मींस +1x। तो +1x को कैंसिल करने के लिए आपको क्या लेना है, -x लाना है। +x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब आपको देखना है कि न्यूमरेटर में एक -x लाने का यहां पर क्या क्या प्रोसेस है मेरे पास, ठीक है। मैं ला रहा हूं, देखो बोथ साइड अगर मैं y +1 इधर भी +1 करूं, ठीक है, तो इधर हो जाएगा देखो y +1 और इधर x माइनस 2 और एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, +3 माइनस एक्स बाई 3 माइनस एक्स। देखो तो x कैंसिल हो गया ना, एक्सेस कैंसिल है क्योंकि यहाँ पर देखो नीचे डिनोमिनेटर में x के साथ तो -1 ऑलरेडी कोफिशिएंट है। तो अगर मैं +1 कर दूं तो ऑलरेडी +1 के साथ डिनोमिनेटर वाला पार्ट मल्टीप्लाई होके ऑलरेडी -x आ जाएगा। तो -x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पर y +1 इक्वल्स टू यहाँ पर 1 बाई 3 माइनस एक्स। सो बोथ साइड फ्रैक्शन चेंज करना है, तो मीन्स ऐसे और 3 माइनस एक्स। सो दैट मीन्स 3 माइनस एक्स, यहां पर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 बाई वाई प्लस 1 माइनस 3, ठीक है। सो दैट मीन्स माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 3y माइनस 3 बाई वाई प्लस 1। सो दैट मीन्स माइनस एक्स इक्वल्स टू -2 माइनस 3y बाई वाई प्लस 1। तो ऊपर जो है अगर मैं माइनस को कॉमन लेके 2 प्लस 3y बाई वाई प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूं। देखो तो माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 प्लस 3y बाई वाई प्लस 1। यहां पर भी देखो एक फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन आने से तो बस आपको डिनोमिनेटर की तरफ ही देखना है। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर, y प्लस 1। y प्लस 1 कभी 0 नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है। तो लिखो हियर हियर हियर, तो यहां पर एक कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। हियर y प्लस 1 कभी भी 0 के साथ इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स ये y का वैल्यू कभी भी -1 नहीं होगा। दैट मीन्स y का वैल्यू -1 के अलावा कोई भी कुछ भी आप y का वैल्यू चूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दैट मीन्स y का वैल्यू ही तो रेंज है ना। सो दैट मीन्स रेंज ऐसे लिखो, रेंज इक्वल्स टू कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, बट एक्सेप्ट क्या, -1। तो दैट मीन्स रेंज क्या होगा, -1, ठीक है। हो गया, फिर सिंपल है। तो डोमेन भी निकल गया, रेंज भी निकल गया, है कि नहीं। अब लिखो फाइंड the range, find the domain and range of fx equals to, next question, very important question ये, ठीक है। find the domain and range of fx equals to root over 16 minus x square, root over 16 minus x square, root over 16 minus x square, 16 minus x square, fx equals to root over 16 minus x square, ठीक है। अच्छा, तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ fx equals to 16 रूट ओवर 16 माइनस x square, डोमेन निकालना है, ठीक है। यहाँ पर तो फ्रैक्शन का कुछ नहीं है, दैट मींस यहाँ पर डिनोमिनेटर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर रूट
बट यहाँ पर रूट है। अब रूट रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या क्या जानते हैं? रूट के अंदर कभी निगेटिव नंबर नहीं आ सकता है, रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नंबर नहीं आ सकता, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि रूट जो है, रूट जहां पर दिखाई देगा आपको, दैट मीन्स ये आपको कंसिडर करना है कि रूट के अंदर तो निगेटिव नंबर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यही आइडिया लेके हम लोग प्रोसीड करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर एफ एक्स देखो क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखो हियर रूट के अंदर जो भी टर्म हो वो कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता है, लेस देन 0 नहीं हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, है कि नहीं? तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए। अब जो है ये जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है? ऊपर है सिंगल है, दैट मींस बाई 1 है, न्यूमरेटर में है। तो न्यूमरेटर में तो 0 जो है वो आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। न्यूमरेटर में 0 आएगा तो आंसर 0 आएगा, 0 इज रियल नंबर। तो न्यूमरेटर में हम लोग 0 ले सकते हैं, दैट मींस रूट के अंदर 0 आ सकता है, नो प्रॉब्लम। तो रूट के अंदर 0 आ सकता है, कैसे लिखेंगे? 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो है रूट के अंदर जो टर्म है उसका वैल्यू 0 से ग्रेटर भी होगा, 0 के साथ इक्वल भी हो सकता है। वी कैन चूज। ओके, सो हियर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 0, है कि नहीं? तो यहां से दो केसेस निकलता है, x इक्वल्स टू, यहां से x का वैल्यू क्या क्या मिलता है, x का वैल्यू क्या क्या मिलता है, ऐसे कंसीडर कर लो, x का वैल्यू एक -4 मिलेगा, x का वैल्यू एक +4 मिलेगा, है कि नहीं? ठीक है, अच्छा, तो यहां पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहां पर क्या होगा -4, यहां पर होगा +4। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस टाइप का क्वेश्चन किया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये है मेन थिंग, ये आपका ओरिजिनल जो है पार्ट ये है। अब -4 से छोटा वैल्यू चूज करेंगे, -4 से छोटा, -4 से छोटा क्या होता है? -5 चूज करते हैं, यहाँ पर चूज करके बिठाएंगे कहा, मैंने बोला था यही आपका मेन चीज है। ये x का वैल्यू -5 चूज करिए, 4 - 5 -1, 4 माइनस ऑफ -5, दैट मीन्स व्हाट, क्या होगा? +9 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर +9 और यहाँ पर -1, 9 इंटू -1 -9 हो रहा है। दैट मीन्स 0 से छोटा आ रहा है, आना तो चाहिए आपका 0 से ग्रेटर, आ रहा है आपका 0 से छोटा। दैट मीन्स यहाँ पर -4 से छोटा जो हम लोगों ने वैल्यू चूज किया था -5, वी कांट चूज, बस ऐसे क्रॉस देके रखो। ठीक है, अब -4 से ग्रेटर आओ, -4 से ग्रेटर -3, ठीक है। अब 4 - 3 1, 4 माइनस ऑफ -3 7, 7 1 7, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 7 + 7 0 से तो ग्रेटर है ना, सो दैट मीन्स -4 से ग्रेटर हम लोग चूज कर सकते हैं। तो अगर -4 से ग्रेटर चूज कर सकते हैं तो ऑब्वियसली +4 से छोटा भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि एक ही स्पेस है। मैंने बोला था कि लास्ट लेक्चर में, मुझसे मैं यहां पर खड़ा हूं, ये कॉर्नर जो है दूसरा इंसान है, अब मेरा ये साइड और उसका ये साइड दोनों तो स्पेस एक ही है ना, तो -4 से इस तरफ +4 से इस तरफ दोनों तो एक ही स्पेस आ रहा है, देखो स्पेस तो कॉमन आ रहा है ना, तो दैट मींस -4 से ग्रेटर जो है और +4 से छोटा जो है दोनों एक ही स्पेस है। तो यहाँ पर चेक करने का और जरूरत नहीं होता है। +4 से ग्रेटर आओ, +4 से ग्रेटर दैट मीन्स 5, देखो 4 + 5 9, 4 - 5 -1, फिर से लेस देन 0 आ रहा है, देखो -5 -1 इंटू 9 -9, दैट मीन्स ये भी चूज नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पर चूज क्या क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यू चूज कर सकते हैं, कहां से कहां, -4 से लेके +4 तक जितना सारा वैल्यूज होगा वो सब हम लोग चूज कर सकते हैं। सो दैट मीन्स डोमेन क्या होगा, -4 से +4 तक हम लोग वैल्यू चूज कर सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा,
यहाँ पर जो ये लेस देन साइन दिया उसमें इक्वल दे सकते हैं क्या? हर जगह तो देखो इक्वल इक्वल तो दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर भी इक्वल देंगे। इक्वल देने से क्या होता है, मैंने बोला था कि रूट के अंदर तो जीरो, न्यूमरेटर में अगर हो रूट के अंदर तो जीरो आ सकता है, नो प्रॉब्लम। अब एक्स का वैल्यू 4 भी हो जाए, 16 माइनस 16 जीरो, रूट जीरो रियल नंबर, -4 भी हो, एक्स स्क्वायर -4 होल स्क्वायर, 16 माइनस 16 जीरो, जीरो इज रियल नंबर। दैट मीन्स -4 और +4 भी हम लोग चूज कर सकते हैं, एग्री? सो दैट मीन्स डोमेन क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू कहां से कहां, -4, क्लोज इंटरवल होगा। मैंने बोला था आपको ये जो लेस इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल्स टू साइन, ये इक्वल साइन जब दिया जाता है तब क्लोज इंटरवल यूज करना है, ठीक है। नाउ रेंज में आओ, लेट y इक्वल्स टू क्या है, √16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहां से एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे और 16 माइनस वाई स्क्वायर उधर लेके जाएंगे, है कि नहीं? तो दैट मीन्स एक्स अगर लेंगे तो √16 माइनस वाई स्क्वायर, 16 माइनस क्या, वाई स्क्वायर, ठीक है। सो यहां पर एक्स का वैल्यू 16 माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है। यहां पर देखो फंक्शन जो है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर 16 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक ही तो टाइप है ना, एक ही तो ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर से क्या निकला था, -4 से लेके +4 तक, है कि नहीं? तो यहां पर भी तो -4 से लेके +4 तक ही आएगा, डिफरेंस ही आएगा, सिर्फ ये y का रेंज होगा। सिर्फ x के जगह y लिखा हुआ है तो आप भी यही प्रोसेस जो है यही होगा, हर जगह y y y y y y y y बिलोंग्स टू -4 टू +4 लिखेंगे, स्ट्रक्चर सेम है ना, है कि नहीं? सो दैट मीन्स हियर एक ही लिखना है, एक ही चीज, तो बार बार एक ही काम करना जरूरत नहीं है। तो ये y वैल्यू कहां से कहां तक होगा, क्लोज इंटरवल -4 टू 4, तो ये होता है रेंज, ठीक है। तो दैट मीन्स y का वैल्यू क्या है, -4 से 4 तक रेंज। अब थोड़ा देखो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, अच्छा इस पार्ट में जाओ, ये तो y इक्वल्स टू ये है ना, सो दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू कहां से कहां, -4 से लेकर 4 तक तुम चूज करोगे, fx का वैल्यू मिलेगा, दैट मीन्स y का वैल्यू मिलेगा, है कि नहीं? अच्छा y का वैल्यू यहाँ पर कभी भी निगेटिव आ सकता है, देखो तो y का वैल्यू कभी भी यहाँ पर निगेटिव जो है वो आ सकता है क्या? देखो यहाँ पर fx का वैल्यू जो है y का वैल्यू सेम ही चीज है, fx का वैल्यू यहाँ पर निगेटिव, x का यहाँ पर -4 से लेकर 4 तक कोई भी वैल्यू चूज करो, निगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगा, दैट मीन्स y का सब पॉजिटिव वैल्यूज ही आएगा, है कि नहीं? पॉजिटिव वैल्यूज ही आएगा, नहीं है कि नहीं? सो यहाँ पर जो y बिलोंग्स टू -4 टू 4 आपने लिखा है, ठीक है, ये y करके आपने लिखा है, ठीक है, वेरी गुड। y बिलोंग्स टू -4 टू 4, बट यहाँ पर तो देखो -4, -3, -1, -4, -3, -2, -1, ये सब वैल्यूज इन्वॉल्व हो गया ना, दैट मीन्स यहाँ पर y का वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आ सकता है फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x, है कि नहीं? सो दैट मीन्स यहाँ पर जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू ऑल टाइम पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो दैट मीन्स ये जो -4, -3, -2, -1, ये चारों को हम लोग को अवॉइड करना है, ठीक है नहीं? दैट मीन्स यहाँ पर ये जो है -4 से लेके तो नहीं होगा, 0 to 4 होगा, क्योंकि 0 से लेके शुरू होगा y का वैल्यू, है कि नहीं? डोमेन ठीक है, -4 to 4, ठीक है। अब डोमेन जो तुम चूज करोगे वही तो यहाँ पर पुट करोगे, करने के बाद तो fx का वैल्यू मिलेगा। अब fx का वैल्यू जो है कभी तो नेगेटिव तो नहीं आ सकता ना यहाँ पर, तो यहाँ पर तो सेम प्रोसीड्यूर करके जाएंगे, ये तो हिसाब में तो -4 to 4 आना चाहिए, है कि नहीं? फिर यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर y का वैल्यू तो नेगेटिव जो है वो तो आ नहीं सकता है। अब जैसे यहाँ पर ये -4, -3, -2, -1, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, दैट मीन्स सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर y का वैल्यू नेगेटिव हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, कहां से कहां तक आएगा, 0 से लेके 4 तक आएगा। फॉर ऑल मतलब क्या है, सब के लिए
x बिलोंग्स टू -4 to 4। दैट मीन्स x का वैल्यू -4 से लेके 4 तक चूज करोगे तो y का वैल्यू जो है 0 और 4 के बीच ही रहेगा। नेगेटिव वैल्यूज यहां पर नहीं आएगा। आप लोग देख सकते हैं यहां पर ये तो y है ना, ये देखो ये यहां पर x का वैल्यूज चूज करो, y का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। तो यहां पर ये जो -4 to 4 हम लोगों ने लिखा है वो -4 से लेकर -1 तक उसको आप लोगों को टाटा दे देना है। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिक ये आप लोग याद रखना, एकदम इजी ट्रिक है। ठीक है, फिर आओ फाइंड find the domain and range of fx equals to find the domain and range of fx equals to x by 1 plus x square। Find the domain and range of fx equals to find the domain and range। क्वेश्चन तो एक ही है डोमेन एंड रेंज ऑफ fx equals to x by 1 plus x square। तो आओ fx equals to क्या, x by 1 plus x square। अच्छा यहां पर तो फ्रैक्शन आ गया है कि नहीं। अच्छा यहां पर ये बोलो x का वैल्यू, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट दिखाई दे रहा है ना फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, ये मैं बोल रहा हूं। आप लोग यहां पर देखिए तो डिनोमिनेटर जो है 1 plus x square, ये जीरो आएगा कभी? यहां पर कुछ भी मन में जो आए आप x का वैल्यू चूज करिए, डिनोमिनेटर कभी यहां पर जीरो नहीं आएगा। x का मन में जो आए नेगेटिव पॉजिटिव जो भी वैल्यू चूज करो, क्योंकि स्क्वायर है, x के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। आप अगर यहां पर x का वैल्यू नेगेटिव भी चूज करेंगे, ऊपर स्क्वायर मिलेगा आपको, नेगेटिव वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स डिनोमिनेटर तो कभी भी जीरो नहीं आएगा। y का कुछ भी वैल्यू हम लोग चूज कर लेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू चूज कर लेंगे x का, ये जो फोर्स देके बोल रहे हो ना, कुछ भी वैल्यू चूज कर देंगे, मतलब क्या है, x का वैल्यूज क्या होगा, सब रियल नंबर होगा, है कि नहीं। यहाँ पर कुछ आपको माइनस बोनस नहीं करना है, x का वैल्यू कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, मन में जो आए। y का वैल्यू fx का वैल्यू कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, हियर डोमेन इक्वल्स टू all the real numbers, because x belongs to real number, it will be the domain। domain set मतलब क्या है, सब रियल नंबर सेट। तो फिर इनपुट कहां से चूज कर सकते हैं आप, कोई भी रियल नंबर आप चूज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। ठीक है, अच्छा आप रेंज में आओ, लेट fx equals to x by 1 plus x square, है कि नहीं। अच्छा यहां पर देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन बन गया है कि नहीं। अच्छा ये जब क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन बनता है तब यहाँ पर y इक्वल्स टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायगोनल मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, x प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। दैट मीन्स y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप मुझे बोलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या होता है। ऐसा होता है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा इसके साथ अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं, यहां पर तो y भी है, याद रखना आप लोग। कभी भी अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं और उसमें दो वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है, x भी यूज हो रहा है, y भी यूज हो रहा है। अच्छा आपको जिस वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है उसको लेके ही डील करना है। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x, और दूसरा जो वेरिएबल होगा वो एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, एज ए कांस्टेंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स यहां पर x के ऊपर स्क्वायर है, दैट मीन्स दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फॉर x
एंड y विल बी द कांस्टेंट। y यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जब क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन इस फॉर्म में रहे, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग को पता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस a। तो यहां पर एबीसी क्या है दिखाई दे रहा है आपको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा, x का कोफिशिएंट b होगा, लास्ट का कांस्टेंट टर्म c होगा, है कि नहीं। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं यहां पर यूज करूं, हियर x इक्वल्स टू, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो x का है, स्क्वायर x के ऊपर है, माइनस b, देखो यहां पर b मतलब क्या है, -1, -1 है ना, दैट मीन्स माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, दैट मीन्स -1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब y इंटू c मतलब y बाई 2 इंटू a मतलब y, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4y स्क्वायर बाई 2y। देखो ये होता है कि नहीं है। तो यहां पर देखो y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, यहां पर फ्रैक्शन आ गया, x इक्वल्स टू एक, देखो फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर पार्ट दिखाई दे रहा है एक 2y, ये 2y कभी 0 के साथ इक्वल नहीं हो सकता है कि नहीं। तो लिखो यहां पर, हियर 2y 0 के साथ इक्वल नहीं हो सकता है, दैट मीन्स नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y नॉट इक्वल्स टू 0। ये होता कंफर्म है कि y जो है 0 के साथ इक्वल नहीं होगा, गया फर्स्ट पार्ट। और क्या कुछ y का टर्म है यहां पर, बोलोगे सर यहां पर और y का टर्म कंसीडर क्यों करें, करना पड़ेगा रे भाई, क्योंकि यहां पर रूट का टर्म है। देखो ये रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यूज आ गया तो पूरा x का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर चला जाएगा, है रूट के अंदर तो निगेटिव नंबर नहीं आ सकता है ना रियल नंबर में। तो यहां पर रूट का एक्सप्रेशन, अगर यहां पर रूट का एक्सप्रेशन ना होता, अगर यहां पर रूट नहीं होता तो हम लोग यहां पर छोड़ देते, ठीक है, कंसीडर नहीं करते कुछ। यहां पर y नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर हम लोग यहां पर चूज कर सकते थे, बट यहां पर रूट देने से जो है एक काम बढ़ गया है। तो यहां पर ये देखो 1 माइनस 4y स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ऑब्वियसली 0 से छोटा नहीं होगा तो ग्रेटर तो होगा। अब 0 के साथ इक्वल होगा क्या, रूट के अंदर न्यूमरेटर में है एक्सप्रेशन, देखो रूट के अंदर 0 भी आ जाए क्या फर्क पैदा है कि नहीं। दैट मीन्स ग्रेटर इक्वल्स टू 0 भी हम लोग दे सकते हैं, 0 से ग्रेटर भी ले सकते हैं, 0 के साथ इक्वल भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके नाउ अब जो है इसको भी हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में सजा सकते हैं। देखो 1 माइनस 2y 1 प्लस 2y ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ठीक है, हो गया। अब देखो यहां पर y का क्या क्या वैल्यू मिल रहा है, एक है प्लस हाफ, दूसरा है माइनस हाफ, है कि नहीं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। देखो यहां पर तो नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहां पर माइनस हाफ रखो और उधर प्लस हाफ रखो, है कि नहीं, ठीक है, क्या बोलते हो। अब आओ एक एक करके हम लोग चूज कर सकते हैं। इसमें से यहाँ पर देखो ये 2 वेक्टर है ना, तो देखो यहाँ से y का वैल्यू हाफ निकल रहा है, यहाँ से y का वैल्यू माइनस हाफ निकल रहा है, 2 वैल्यू तो कंसीडर कर लिया हम लोगों ने। अब माइनस हाफ से छोटा चूज करो, माइनस हाफ से छोटा क्या होगा, -1, माइनस हाफ से छोटा वैल्यू क्या होगा, -1 कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर यहां पर -1 चूज करें, -1 तो देखो -1 चूज करते हैं यहां पर,
टू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 दैट मीन्स प्लस हो जाएगा। ये 1 माइनस 2 लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। देखो यहाँ पर 1 माइनस 1 चूज करने से क्या होगा, y की जगह माइनस 1 पुट करो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2, और इधर 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 1 होता है। दैट मीन्स माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई होकर माइनस 1 आ रहा है ना, तो माइनस 1 तो 0 से क्या ग्रेटर होता है, 0 से छोटा होता है। दैट मीन्स 0 से छोटा वैल्यू तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर तो नहीं कर सकते, 0 से ग्रेटर आना चाहिए, है कि नहीं। तो दैट मीन्स माइनस हाफ से छोटा चूज नहीं कर पाएंगे, माइनस हाफ से ग्रेटर आओ, 0 कर सकते हैं, 0 1 y का जगह 0 बिठाना है, 1 माइनस 0 1 प्लस 0 ग्रेटर आ रहा है। देखो 1 माइनस 0 1 प्लस 0 देयर इज 1, 1 तो 0 से ग्रेटर होता है ना। दैट मीन्स यहाँ पर माइनस हाफ से ग्रेटर चूज कर सकते हैं, दैट मीन्स प्लस हाफ से स्मॉलर भी चूज कर पाएंगे, एक ही स्पेस है। अब आओ प्लस हाफ से ग्रेटर 1 1, देखो यहाँ पर ये 1 माइनस का आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, तो देखो नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, माइनस हाफ लेस देन y लेस देन प्लस हाफ, इक्वल देंगे क्या, देखो हर जगह इक्वल साइन है तो आपको भी इक्वल देना। सो y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस हाफ प्लस हाफ, सो रेंज क्या निकला, रेंज माइनस हाफ प्लस हाफ, हो गया। वेरी सिंपल है कि नहीं, ठीक है। अरे भाई ठीक है कि नहीं भाई, बोलो कुछ, है कि नहीं ठीक, हाँ। अब लिखो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, fx इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, fx इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। करो थोड़ा ट्राई करो, तो पहले क्वेश्चन देख के जो है लिख नहीं लेना है आपको, ये क्वेश्चन देंगे फिर उसके बाद खुद ट्राई करो ना क्या होता है, देखो है खुद से होता है कि नहीं। तो यहां पर क्या है, क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, fx इक्वल्स टू 3 बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, फ्रैक्शन आ गया। सो fx इक्वल्स टू 3 बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर ये तो कभी 0 तो नहीं हो सकता है कि नहीं। तो √2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स √2 माइनस एक्स, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, √2 प्लस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू √2 भी नहीं होगा, माइनस √2 भी नहीं होगा। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू के अलावा आप एक्स का वैल्यू कुछ भी चूज कर सकते हैं। दैट मीन्स डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा कुछ भी चूज कर सकते हैं, बट एक्सेप्ट माइनस √2 एंड है कि नहीं। That means all the real numbers can be chosen, but except minus √2 and plus √2, क्योंकि देखो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है x का वैल्यू प्लस √2 और माइनस √2 तो चूज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर देखो x का वैल्यू √2 चूज करो, √2 होल स्क्वायर 2 माइनस 2 0 अनडिफाइंड हो गया ना, माइनस √2 होल स्क्वायर, अब माइनस होल स्क्वायर है, माइनस तो नहीं रहेगा प्लस ही हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 नहीं होगा। सो अब रेंज में आओ, लेट y इक्वल्स टू 3 बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा, बहुत सारे अगर फ्रैक्शन उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये 3, दैट मीन्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 बाई वाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 बाई वाई माइनस 2, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 3 बाई वाई, दैट मीन्स x इक्वल्स टू √2y माइनस 3 बाई वाई। देखो पूरा रूट के अंदर एक एक्सप्रेशन आ गया, दैट मीन्स
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 2y माइनस 3 बाई रूट y लिख सकते हैं ऐसे, है कि नहीं? अच्छा, हो गया। फिर देखो फ्रैक्शन आ गया ना यहां पर, है कि नहीं? अब फ्रैक्शन जो आ गया है, फ्रैक्शन जो आ गया है यहां पर डिनोमिनेटर में देखो, y तो कभी यहां पर 0 नहीं आ सकता है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि अगर y का वैल्यू 0 पुट कर दे तो पूरा एक्सप्रेशन देखो अनडिफाइंड हो जाएगा। 0 से छोटा भी नहीं आना है क्योंकि रूट है, मीन्स ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिख लो, लेस इक्वल्स टू 0 कभी नहीं होगा, ठीक है? हो गया। दैट मीन्स y का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगा, ये कंफर्म है, ठीक है? ये तो गया। नीचे के लिए डिनोमिनेटर के लिए ये केस मिला, 0 या फिर 0 से छोटा चूज करोगे तो ये डिनोमिनेटर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब न्यूमरेटर में आओ, न्यूमरेटर में ये जो रूट का टर्म है 2y माइनस 3, रूट के अंदर जो टर्म है वो कभी भी लेस देन 0 आएगा या फिर ग्रेटर देन 0 रहेगा, है? ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, देखो, है कि नहीं? दैट मींस y ग्रेटर देन 3/2, है कि नहीं? तो दैट मींस यहां पर y का वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रहा है, यहां पर y का वैल्यू 3/2 से ग्रेटर आ रहा है। तो यहां पर नंबर लाइन अगर एक ड्रॉ करें, यहां पर देखो 0 आ रहा है और 3/2 यहां पर होता है, तो y का वैल्यू 0 से ग्रेटर मतलब इस तरफ जाएगा, y का वैल्यू 3/2 से ग्रेटर मतलब इस तरफ जाएगा। दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है? ये पार्ट आ रहा है ना, तो हम लोग यहां से कंसीडर क्यों करेंगे? 0 और 3/2 के बीच आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ना, यहाँ पर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं? तो हम लोग को तो दोनों मिला के काम करना है कि नहीं? सो दैट मींस यहाँ पर y का वैल्यू जो है y इक्वल्स टू क्या होगा? y का वैल्यू क्या होगा? 3/2 से, यहां पर देखो ये 2y माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है, इक्वल भी तो हो सकता है क्योंकि रूट न्यूमरेटर का टर्म है, 2y माइनस 3 तो 0 भी हो सकता है ना, न्यूमरेटर में 0 आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर ये साइन दे सकते हो आप, ठीक है? दैट मींस 3/2 के साथ इक्वल भी हो सकता है। तो देखो 0 से ग्रेटर 3/2 से ग्रेटर, दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है? ये पार्ट। दैट मींस अल्टीमेट आंसर जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? 3/2 से ग्रेटर, 3/2 से ग्रेटर। ये एरो कहां पर जगह खत्म होगा? इन्फिनिटी तक खत्म होगा। इन्फिनिटी के साइड में आपको ओपन इंटरवल देना है ऑलवेज, और 3/2 के साइड में क्या इंटरवल देना है? लेस इक्वल्स टू मींस रेंज यहां पर क्या होगा? क्लोज इंटरवल 3/2 इंफिनिटी। ओके, ठीक है, हो गया। लेट f इक्वल्स टू ऐसे लिख लो, फाइंड द डोमेन एंड range, find the range only, find the range of fx equals to, find the range of fx equals to, find the range of fx equals to x square by, find the range of fx equals to x square by 1 plus x square. Find the range of fx equals to x square by 1 plus x square। आपको रेंज निकालना है इसे, ठीक है? डोमेन नहीं निकालना है। हियर fx इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर, तो फ्रैक्शन आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन भी है, तो y इक्वल्स टू क्या करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन मिलने से वो डायगोनल मल्टीप्लाई करना है, हम लोगों ने किया था ना ये, ठीक है? तो यहां पर देखो x स्क्वायर अगर कॉमन ले y माइनस 1, और इधर प्लस y इक्वल्स टू 0, है कि नहीं? सो दैट मीन्स x स्क्वायर इक्वल्स टू
minus y by y minus 1. That means x square equals to y by 1 minus y. So x equals to root y by 1 minus y. ये होता है x equals to this. अब जो है आपको चूज करना है, ठीक है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर पार्ट में आओ। डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है, 1 माइनस वाई है। उसका वैल्यू तो जीरो के साथ तो कभी इक्वल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 माइनस वाई का वैल्यू लेस देन जीरो भी तो नहीं आ सकता है, क्योंकि रूट के अंदर है। तो दैट मीन्स लेस जीरो भी नहीं हो सकता है, इक्वल जीरो भी नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ऐसे लिख लो, है ना। तो दैट मीन्स यहां पर 1 माइनस वाई का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो ही होगा। दैट मीन्स माइनस वाई ग्रेटर देन ये माइनस 1। अब बोथ साइड माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा y लेस देन 1 होगा, है क्या नहीं। माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर सपोज 2 लेस देन 3। अब बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई करो, -2 -3। अब के ये लेस देन रहेगा या फिर ऐसे ग्रेटर देन होगा। नेगेटिव में तो -2 ग्रेटर होता है, तो लेस देन ग्रेटर देन साइन माइनस मल्टीप्लाई करने से जो है चेंज हो जाता है। तो y लेस देन 1 है, ये तो कंफर्म है। फिर ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में आओ। न्यूमरेटर पार्ट में y जो है लेस देन 0 नहीं हो सकता है। ये y भी तो रूट के अंदर है ना, तो लेस देन 0 तो नहीं हो सकता। दैट मींस y ग्रेटर देन 0 ही होगा ऑलवेज। और 0 भी तो आ सकता है, न्यूमरेटर पार्ट में है, तो यहां पर 0 भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। दैट मींस इक्वल 0 भी दे सकते हो। तो दैट मीन्स यहां पर y का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा और यहां पर 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां पर दोनों को कंबाइन करके, ये दोनों को कंबाइन करो, y का वैल्यू क्या मिलता है। दैट मीन्स देखो 0 से ग्रेटर या फिर इक्वल और 1 से छोटा, ये लिख सकते हैं कि नहीं। देखो तो, है कि नहीं। 0 से ग्रेटर या फिर इक्वल इस यहां से लिखा, और y लेस देन 1 ऐसे ही तो लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स y का वैल्यू कहां पर बिलोंग कर रहा है, 0,1। 1 के साइड में तो इक्वल साइन नहीं है, दैट मीन्स ओपन इंटरवल होगा। 0 के साइड में तो यहां पर इक्वल साइन है, दैट मीन्स क्लोज हो। दैट मीन्स y का वैल्यू क्लोज ओपन इंटरवल 0, क्या होगा 1। क्लोज ओपन इंटरवल 0,1। तो ये होता है रेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। तो देखो कितना सुंदर क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द डोमेन एंड रेंज पार्ट। ओके, सो ऐसे ही आपको डोमेन एंड रेंज का डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेगा। डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डोमेन एंड रेंज जो है वो निकालना है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखो कितना दिमाग लगाना पड़ता है ना। देखो ये पूरा नंबर सिस्टम का खेल है, नंबर्स का खेल है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सब का खेल है। दैट मींस नंबर सिस्टम जिसका बहुत ज्यादा क्लियर होगा वो सभी डोमेन एंड रेंज में ग्रिप कर सकता है। जूनियर क्लासेस में जिसका नंबर सिस्टम में गड़बड़ है, फाउंडेशन गड़बड़ है, डोमेन एंड रेंज में जो है प्रॉब्लम थोड़ा बहुत क्रिएट होगा। बट मैं हूं, Uvik sir is here, so I will try my best, okay, to make you clear, okay, about this domain and range. तो मुझे जहां तक लगता है ये सब डिस्कशन सुनने के बाद तो थोड़ा बहुत जिस लोगों को जो बेसिक नहीं है नंबर सिस्टम के बारे में, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये सब तो क्लियर हो चुका होगा शायद। और आप लोग अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ आप लोग मुझे पूछिएगा, ठीक है। मैं फिर से एक लेक्चर बनाऊंगा डोमेन एंड रेंज के ऊपर, ठीक है। और भी है डोमेन एंड रेंज का जो है और भी क्वेश्चंस करेंगे, बट अभी जो है थोड़ा अपर लेवल में जाएंगे, थोड़ा ऊपर के लेवल तक जाएंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में एक ही साथ हम लोग ये टफ और ये इजी मिल गया, क्योंकि 11th क्लास है। धीरे धीरे हम लोग थोड़ा आप लोगों को अंदर से स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर उसके बाद शुरू करेंगे, है कि नहीं। तो ये 12 नहीं है कि एक इजी करा दूं एक टफ करा दूं, ऐसा नहीं होता है। 11th में जस्ट स्टार्टिंग है, आप लोगों को सीरियल वाइज ठीक तरह से जाना है, ठीक है, जिससे आप लोग को कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो अंदर। ओके, तो आप लोग का अगर लेक्चर पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो है जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, ठीक है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, बाय एंड
जय हिंद।